Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 29th of August 2023. From today's newspaper, these are the four topics which we will be covering. The number one is about the Article 35A. Recently, the CJI of our country, that means the Chief Justice of India, has given a statement that Article 35A denied many in Jammu and Kashmir their rights. So, what is this Article 35A? How it is related to the historical background of Jammu and Kashmir? We will be dealing with everything about this. The second topic is about the launch of Aditya L1 mission on September 2. Chandrayaan mission पिछले महीने लॉन्च हुआ और अभी कुछ ही दिन पहले उसका जो सक्सेस है उसका वीडियो देख के इसरो वाज वेरी हैप्पी. The whole India was very happy. The whole India was proud of ISRO. And now ISRO has announced that they will be launching the Aditya L1 mission for the exploration of the sun on September 2. Then the third topic is a small with respect to the prelims you can consider it. That is the Neeraj Chopra, a revolutionary name which is continuously coming in the newspapers, is leading a javelin revolution for India. Then about the India and Greece relation. How they are finding a new way towards making their own age-old relationship. All right. So these would be our topic of discussion in today's video. So before we start the video, please do subscribe my channel, that is IAS Cafe, and please do like and share. The more you will like our video, the more you will share my video to as many as students. So it would be easy for us to reach the students to make their UPSC journey easy. Now, coming back to the main discussion about the Article 35A. We had already discussed that the CGI of India has said that the Article 35 has denied many rights of the citizens of the state. तो यानी आर्टिकल 35A की बात हो रही है. तो यह आर्टिकल 35 एग्जैक्टली है क्या, उसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, so we all are aware that Indian constitution is a written constitution. In this constitution, there are various parts, the subparts, the chapters, the articles which are divided. And among that, there was an article, Article 35A. Under this article, the Constitution of India empowered the state legislature of Jammu and Kashmir to define the permanent resident of the state along with granting them special privileges. I reiterate it. ये अगर आपके पास आपके पास अभी तो ये यूनियन टेरिटरी है, बट पहले ये क्या था, जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था. तो अगर ये जम्मू एंड कश्मीर, हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट वाज अ स्टेट, और ये स्टेट के पास आपके पास खुद का एक स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली हुआ करती. तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल 35A है, ये स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर देता था कि आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन इस स्टेट के जो परमानेंट रेजिडेंट होंगे और उनको किस तरह की स्पेशल प्रिविलेजेस आप यहाँ पे उनको दे सकते हो. लेकिन हालांकि ये जो आपके पास आर्टिकल है, दैट मींस दिस आर्टिकल पर्टिकुलरली गॉट रिवोक्ड ऑन 5th of August 2019, a historical date with respect to the India. 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट का जो टैग था उसको हटा के दो यूनियन टेरिटरी बनाई गई. दैट मींस वन इज द जम्मू एंड कश्मीर एंड द अनदर यूनियन टेरिटरी इज योर लद्दाख. और इसी के साथ
आर्टिकल 35A को भी रिवोक कर दिया गया। मतलब आज की डेट में आर्टिकल 35A एग्जिस्ट नहीं करता। बट ये आर्टिकल 35A जिसके अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर है कि वो परमानेंट पावर था कि वो परमानेंट रेजिडेंट कौन है ये चूज कर सकता है और उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिल सकता है। तो ये आर्टिकल 35 का वजूद क्या है? हाउ दिस आर्टिकल 35A एक्चुअली केम इनटू फोर्स? So let's go to a bit of a history or a background. I would rather say that during the time of the Britishers, when Britishers were ruling over India, so there were certain states जो कि princely states थे और जो कि ब्रिटिश सुवरेनिटी पे काम करते थे बट उनका खुद का कंट्रोल था स्टेट सब्जेक्ट्स के लिए, राइट? देन दे वर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड जो स्टेट भी थे। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है आपका प्रिंसली स्टेट का हिस्सा था, ठीक है? So if I talk about the Jammu and Kashmir at that time, so it was categorized as the princely state under the suzerainty of British Empire. तो इस कंडीशन के अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉपुलेशन थी दैट वाज नॉट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल सब्जेक्ट, वो स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है। आई रिपीट, जम्मू एंड कश्मीर एट दैट टाइम वो एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था जो ब्रिटिश सुज़ेरेनिटी पे काम कर रहा था। यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो वो खुद डील करता था और उसमें से एक मुद्दा पॉपुलेशन का भी आता था। Population was under the state subject of Jammu and Kashmir that was not under the British colonial subject. और यहाँ पे फिर कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स आते हैं जिसकी वजह से ये जो हेरिडिटरी स्टेट सब्जेक्ट है एज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। तो वहां के जो लोग थे उन्होंने ये डिमांड किया, जो कश्मीरी लोग थे, जो कश्मीर के लोग थे, दे हैड डिमांडेड कि जो लोग एथनिसिटी जो है कश्मीर एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को इस स्टेट की सरकारी जॉब के अंदर अलाउ किया जाना चाहिए। तो इस डिमांड की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी एक लेवल तक। तब वहां के जो जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, उन्होंने एक लीगल प्रोविजन बनाया, राइट? एक एक्ट के थ्रू एक स्टेटस दिया बिटवीन 1912 से 1932 कि जो पॉपुलेशन है वहां पे कुछ ऐसा लीगल एक्ट लेके आया जाएगा जहां पे जो कश्मीरी एथनिसिटी के लोग हैं उनको स्पेशल प्रिविलेजेस जो है मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बैकग्राउंड या फिर एक फाउंडेशन रेडी हो रहा था आर्टिकल 35A के। तो अब इस प्रोविजन के अंदर स्टेट सब्जेक्ट को क्या ग्रांट दिया गया? दैट इज द प्रोविजन granted the state subjects the right to government office, land ownership and the usage. The provisions were not granted to the non-state subjects. अब यहाँ पे क्या बात हो रही कि जब महाराजा हरि सिंह ने ये डिसाइड किया तो पहली चीज महाराजा हरि सिंह ने क्या डिसाइड करी कि यहाँ पे इस प्रोविजन के अंदर जो भी मैटर स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आते हैं वहां पे आप स्पेशल प्रिविलेजेस दे सकते हैं। स्टेट सब्जेक्ट में पॉपुलेशन भी आ रहा था लेकिन जो नॉन स्टेट सब्जेक्ट है वहां पे आपका ये प्रोविजन वैलिड नहीं माना जाएगा। तो जब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन ऑफ इंडिया के साथ मर्ज हुआ, राइट? what I'm saying that accession of Jammu and Kashmir with the Union of India 26th of October 1947, तब जो महाराजा थे कश्मीर की हरि सिंह, उन्होंने डिफेंस का मुद्दा, एक्सटर्नल अफेयर्स का मुद्दा और कम्युनिकेशन, यानी there are three subjects specifically, that is the defense, the external affairs and the communication. He just handed over these subjects to the government of India. तो वहीं से शुरुआत होती है आर्टिकल 370 की। that article 370 of the constitution of India and the constitution order of 1950 ये जो रिलेशनशिप है ये बिल्ड किया। तो जब ये दिल्ली एग्रीमेंट हुआ, जब आपके पास सेसेशन हुआ इसके अंदर बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर निकाला 1954 में और जो सिटीजनशिप की जो राइट्स है उसको एक्सटेंड किया टू द रेजिडेंस ऑफ द स्टेट। यानी कि इंडिया का जो सिटीजनशिप का जो स्टेटस है, जो सिटीजनशिप की जो राइट्स है, वो जम्मू एंड कश्मीर के जो रेजिडेंट्स है वहां पे उन्होंने एक्सटेंड किया। और उसी के साथ यहाँ पे फोकस करिएगा, यहाँ पे एक ऑर्डर है, इट इज एन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, राइट? तो इसी के साथ में आर्टिकल
35A भी इंसर्ट किया गया. So Article 35A was inserted by an executive order of the president, not by any parliamentary procedure, not by any amendment procedure of Article 368. It was barely introduced or inserted in the constitution with the help of what? With the help of an executive order of the president, right? But अब ये परमानेंट रेजिडेंट कौन थे एज पर द आर्टिकल 35A? तो अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अंडर आर्टिकल 35A जब आपको परमानेंट रेजिडेंट डिसाइड करने का मौका मिल रहा है, तो पहले आप तो ये बताइए कि परमानेंट रेजिडेंट है क्या, इसके अंदर कौन है परमानेंट रेजिडेंट, वो देखते हैं. आर्टिकल 35A के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो कि 14 मई 1954 के तहत स्टेट सब्जेक्ट में आता था या फिर कम से कम 10 साल तक जम्मू एंड कश्मीर का रेजिडेंट रहा है, उसको लॉफुली इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करने का राइट था इन द स्टेट. ओके, गिव मी अ सेकंड. Okay, so as per the Article 35A, a permanent resident was anyone who was a state subject on the 14th of May 1954 या फिर उन्होंने 10 साल तक जम्मू कश्मीर में रिसाइड किया हो. Then that person will be lawfully acquiring the immovable property in the state. ठीक है. Then second thing, the state legislature of the Jammu and Kashmir had the power to modify the definition of a permanent resident. और ये जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उनके पास पावर थी कि जो परमानेंट रेजिडेंट का जो डेफिनेशन आप दे हो उसको मॉडिफाई कर सकता है. ठीक है, along with the applicable proceeding privileges through the laws passed with the 2/3 of the majority. So in addition, it also clearly defined which privileges could not be granted to the non-permanent residents. A non-permanent resident cannot own property in the Jammu and Kashmir. The same non-resident cannot obtain a state government. A non-permanent cannot join any educational institutions. ठीक है. अब जब आर्टिकल 35A लाया गया तो इसमें कुछ लीगल इश्यूज है. पहला लीगल इश्यूज ओपोनेंट्स के हिसाब से जो हमने डिस्कस कर लिया कि ये प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आया था, जबकि होना क्या चाहिए था, एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होना चाहिए. आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 368 है जिसके थ्रू आप अमेंडमेंट करते हो, तो दिस शुड बी आइडियली द प्रोसीजर, बट इट इज नॉट फॉलोड और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ये किया गया. तो दिस वाज द मेजर इशू, राइट. देन द सेकंड, इट आल्सो वायलेट द इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि आर्टिकल 14 जो है आपके पास फंडामेंटल राइट. जब आप कह रहे हो कि कोई पर्टिकुलर इंसान है जो कि रेजिडेंट है, सिर्फ वही इंसान वहां पे क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, जॉब ले सकता है या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पार्ट ले सकता है, और जो नॉन रेजिडेंट है वो ये सब नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसको वायलेट कर रहे हो. आज की तारीख में स्टेटस क्या, इट इज रिवोक्ड, वी हैड डिस्कस्ड इट. नाउ कमिंग टू the second topic about the Aditya L1, which is India's first solar mission. So let's talk about the Aditya L1, जो कि इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन. इसको थियोरी समझने से पहले आप ये समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर सन. ओके, आई एम अज्यूमिंग कि आपको एक बेसिक चीज पता है कि ये आपके पास सन है और ये सन के चारों तरफ जो अर्थ है वो रोटेट करती है. ठीक है, so here I think this would be the better place. Okay, so we are having a sun over here. Okay, so around the sun, the earth will be orbiting. So here I will say this is the earth, जो इसके चारों तरफ इस तरह से ऑर्बिट कर रही है, यानी कि रोटेट कर रही होगी या फिर घूम रही है. ठीक है, और इसी I'm sorry, और ये जो आपके पास अर्थ है, इसी अर्थ के चारों तरफ, I can take which color which would be visible. Okay, तो इसी अर्थ की चारों तरफ आपके पास जो मून है वो घूमता है, रोटेट करता है. ओके, so this is your अर्थ और ये आपके पास मून होगा. क्लियर है? तो पहले तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सेंटर में आपके पास सन है
सन के चारों तरफ अर्थ रोटेट कर रही है और अर्थ के चारों तरफ जो मून है वो आपके पास रोटेट करता है। हर एक मास, either it is sun or earth or whatever, उन सब का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। आई reiterate, any mass, whether the sun or the earth or anything, they have their certain amount of gravitational force. Through that gravitational force they try to attract or they try to grab the objects towards them. That means सन का कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और अर्थ का कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो सन उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, करेक्ट। लेकिन कुछ स्पेस के अंदर पॉइंट्स होते हैं जहां पे दो बड़े बड़े मास यानी कि सन और अर्थ है, ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर कर पाते हैं। दैट मीन्स सन जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है उतना ही अर्थ लगा रहा है, तो बेसिकली वो एक बैलेंस के अंदर होता है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्टेशनरी जगह पे आ जाता है। ये आपके पास सन है और ये आपके पास अर्थ है, ठीक है। तो ये सन और अर्थ, इसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर आपका वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है एंड दैट इज द रीजन वो स्टेशनरी पॉइंट पे है। और इस सन के चारों तरफ अब अगर अर्थ घूमेगी तो उसी के साथ वो ऑब्जेक्ट भी घूमेगा, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू फ्रॉम हियर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। I think I can erase up this particular thing. All right. So what I am saying, there are certain points. उस पॉइंट में एक पॉइंट का नाम है आपके पास L1 पॉइंट। तो ये L1 पॉइंट वो है जहां पे सन और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल है, दे आर काउंटरिंग ईच अदर, दे आर बैलेंसिंग। तो बिकॉज ऑफ दिस ये क्या है आपके पास, क्या रहेगा, स्टेशनरी पोजीशन पर रहेगा। मैं इसको समझा पा रही हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, ओके, दिस इज दी सन और ये मेरे पास अर्थ है, ठीक है। ये सन है और ये अर्थ, इसके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है विच इज द लैग्रैंजियन पॉइंट। तो इस सेंटर पे आप उसको एक ऑब्जेक्ट मान सकते हो जो कि मिडिल पॉइंट होगा जहां पे वो ऑब्जेक्ट है, जहां पे आपके पास वो फोर्स जो है बैलेंस करेगा। तो जब बैलेंस करेगा तो वो ऑब्जेक्ट ना इधर जा पाएगा सन के पास, ना इधर जा पाएगा अर्थ के पास। मतलब अब अर्थ जहां जहां रोटेट करेगी, देखो मेरे हाथ को, उसी तरह से वो ऑब्जेक्ट भी उसी के साथ रोटेट करेगा। क्लियर है, जहां जहां अर्थ जाएगी वहां वहां वो ऑब्जेक्ट जाएगा। मतलब उस ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए हमको अलग से फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये जो आदित्य एल1 मिशन है उसको L1 पॉइंट पे लॉन्च किया गया है, ताकि सन के चारों तरफ अगर ये जब जाएगा उसको अलग से रोटेट करवाने के लिए हमें फ्यूल एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली घूमेगा। तो ये L1 पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इसी L1 पॉइंट पे हम हमारा PSLV के थ्रू जो पेलोड भेज रहे हैं जो कि सन के पास जाएगा और उसका स्टडी करके आएगा। अब मून की तरह भाई सन की सरफेस पे नहीं जा सकता, ब्लास्ट हो जाना है वहां पे, ठीक है। तो सन की जितना नजदीक जा सकता जाएगा उसकी स्टडी करेगा। ये बेसिक क्लियर है, तो अब हम थ्योरी पे आते हैं। तो व्हाट इज आदित्य एल1? ये इंडिया का पहला सोलर मिशन होगा और यहाँ पे जो लॉन्च व्हीकल है दैट इज योर PSLV, और जो payloads होंगे, so these are the 7 payloads. The number 1 is about the VELC. The second is about the Solar Ultraviolet Imaging Telescope. The third is about the Solar Low Energy X-ray Spectrometer. The fourth is about the Aditya Solar Wind Particle Experiment. The next one is High Energy L1 Orbiting the X-ray Spectrometer. Next, the plasma analyzer package for Aditya, which is the PAPA, and the advanced tri-axial high resolution digital magnetometers. Here, now, so what is this all about? इसका जो objective है वो क्या होगा? If we talk about the sun, ठीक है, अगर हम sun के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे इसके sun की बहुत सारी layers है। Exactly कितनी layers है क्या है हमें नहीं पता, बट कुछ layers जो है जिसका हम नामकरण कर सकते हैं, जिसमें से आप photosphere is the most important thing. So there are certain layers of the sun जिसकी study यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो आदित्य L1 will study the sun's corona
the sun's photosphere, the chromosphere, the solar emissions, solar wind, the flares, the coronal mass and ejections, and will carry out the round-the-clock imaging of the sun. The mission will be launched by ISRO to the L1 orbit, which is about 1.5 million kilometers from the Earth. The orbit allows the Aditya L1 to look at the sun continuously. अब L1 क्या है? हमने अभी अभी डायग्राम से समझा है. अब इसकी हम जो थियरी है वो हम देखेंगे. अब हमको इजीली इस थियरी को समझने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली. So the number one is L1 refers to the Lagrangian point, या फिर the Lagrange point number one. Number one means I said there are many certain points. There is L1, L2, L3, L4 और L5. तो उसमें से आपके पास number one is your the Lagrange point in the orbital plane of the Earth and Sun system. So the points are positions in the space where the gravitational force of two body systems like the Sun and the Earth produce the enhanced regions of attraction and repulsion. So these can be used by spacecraft to reduce the fuel consumption needed to remain in the position. A satellite placed in the halo orbit around the L1 has major advantage of continuously viewing the sun without any occultation or eclipses. The L1 point is home to the solar and heliospheric observatory satellite, that is the SOHA of the NASA. What are the features and significance of this VLC payload? तो यहाँ पे जो 7 पेलोड देखे तो उसमें से एक VLC पेलोड है, जो पेलोड है, और उसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? The number one, the VLC will be the main payload among the 7 designed to study the various aspects of the sun and is one of the most precise instruments made in India. So it was conceptualized and designed in 15 years, which helped in solving the mystery. So significance in studying the temperature, the velocity, the density of the corona, the processes, etc. Now coming to the next point, the next news, which is a kind of a very small news, एक बहुत ही important नाम, नीरज चोपड़ा. ये ऐसा नाम है जो कि जेवलिन थ्रो के अंदर एक रिवॉल्यूशन ला रहा है इंडिया के लिए. जेवलिन थ्रो यानी कि जो भाला फेंकने का जो गेम होता है, दैट इज द जेवलिन थ्रो. इसमें जो नीरज चोपड़ा है वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 प्लेयर बन चुके हैं. भारत का नाम रोशन जो है वो कर चुके हैं. तो ये न्यूज में क्यों है? 22 मई 2023 को नीरज जो चोपड़ा है, he became the world's number 1 player in the men's javelin throw ranking, जो कि वर्ल्ड एथलेटिक्स ने रिलीज किया है. He is the first Indian ever to get this ranking. So Neeraj Chopra continues to top the ranking with 1455 points, while Anderson Peters जो है उनको सेकंड जो रैंक है वो मिली है. ठीक है, तो चोपड़ा जो है वर्ल्ड के नंबर 2 पे भी आए थे, बट हमारा फोकस नीरज चोपड़ा पे होना चाहिए. नाउ दैट्स इट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. Coming to the last discussion, that is, it is about the India and Greece relation. India और Greece, which is a country near the European Mediterranean वाला जो एरिया है वहां पे, इंडिया और ग्रीस का जो नेशन है वो क्या है? इंडिया ने जैसे ही अभी आपके पास जो जॉन्सबर्ग समिट थी उसको कंप्लीट किया विद रिस्पेक्ट टू द ब्रिक्स, और वहां से सीधा चले ग्रीस की तरफ फॉर इट्स फर्स्ट स्टेट विजिट टू द यूरोपियन मेडिटेरेनियन कंट्री. पीएम मोदी जी की पहली स्टेट विजिट होगी इंडिया और ग्रीस के रिलेशंस को लेकर ग्रीस के अंदर. ये भारत में 40 सालों के अंदर पहली विजिट होगी, बिकॉज इनसे पहले सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी जी गई थी सितंबर 1983 में. तो इस मीटिंग में एक्चुअली हुआ क्या? एक तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि 40 साल में पहली बार हो रही है. दूसरा, लाइक जस्ट ब्रिक्स की मीटिंग कंप्लीट करके डायरेक्ट मोदी जी वहां गए, तो एक्चुअली इस मीटिंग के जो आउटकम्स है वो क्या रहे? So the first outcome is the broad outcome of the present visit, as mentioned in the joint declaration of the two the leaders, are as follows. सबसे पहले दोनों कंट्रीज एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरफ जा रही है. यहाँ पे जो आपके पास मेडिटेरियन वाला जो सी है, आई रिपीट, आपको वर्ल्ड मैप क्लियर करना पड़ेगा तभी इंटरनेशनल जो न्यूज है आपको क्लियर होगी. ठीक है, तो बेसिकली जो मेडिटेरेनियन वाला जो सी है, वहां से जो इंडो पैसिफिक वाला एरिया है, वहां पे एक फ्री तरीके से एक ओपन जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर सके, आना जाना कर सके, उसके लिए दोनों कंट्रीज ने अपने विजन को शेयर किया है.
और दोनों कंट्री इंडिया और ग्रीस का जो बायलेटरल ट्रेड है उसको किस तरह से डबल कर सकते हैं, इस पर यहाँ पे बात की है। Memorandum of Understanding was also signed with respect to the research for agriculture, production, animal rearing, electronics, and the pharmaceutical sector. So early finalization of the MMPA, that is Mobility Migration Partnership Agreement, to facilitate the skilled migration between the two countries, establishment of direct flight between the two countries ताकि टूरिज्म बढ़े, कनेक्टिविटी बढ़े। दोनों ने ही टेररिज्म को कंडेम किया है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं और रोक सकते हैं, और उसके बारे में यहाँ पे बात की है। तो क्या हिस्टोरिकल रिलेशन है? जी हाँ, इंडिया और हिस्ट्री जो है हमारे ग्रीस की बहुत ही हिस्टोरिकल रिलेशन रहे हैं, चाहे वो एलेक्जेंडर का कैंपेन हो या फिर अशोका की जो चंद्रगुप्ता के टाइम पे जो मेंशन है आपके पास इंस्क्रिप्शंस में, सेलिटस निकेटस के टाइम पे जो मेंशन है, डेमेट्रियस मेनेंडर के जो राजा है वो सब ग्रीक रूलर यहाँ पे हुआ करते थे। तो व्हाट इज द प्रेजेंट रिलेशन? इट इज गुड। अगर पॉलिटिकल रिलेशन के बारे में बात करेंगे तो वो अच्छा है, अभी मोदी जी वहां पे जा रहे हैं, हमारी कमर्शियल रिलेशन आर ऑल्सो गोइंग गुड, प्रीटी मच इन अ गुड नोट। तो इन्हीं सब के जो आउटकम्स उस पर आप ज्यादा फोकस करिएगा, आपका ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, और यहाँ पे इसका जो इम्पोर्टेंस है वो सीधा आप लिख सकते हैं, चैलेंजेस पे इस पे आपको फोकस करने की जरूरत है। So that's it for today. I hope the videos are making some sense. You are, able to grasp the things what is there in the editorial section of the newspaper. ज्यादा डिटेल में ना जाइए, जितना यूपीएससी का सिलेबस है पॉइंट टू पॉइंट, दैट इज व्हाई इन द न्यूज, इंपॉर्टेंट डेटा या जो फैक्ट है वो, और कुछ प्रोज और जो कॉन्सिक्वेंसेज से रिलेटेड है, वे फॉरवर्ड। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड। ओके, so thank you so much. Please do like and share.